ریشم مہندی کی لالی ہاتھوں پر سجائے دلہن کا لباس پہنے سادگی میں ہی قیامت اٹھا رہی تھی۔ ابھی تو اسے پولر جانا تھا، نکاح کی تقریب عشاء کے بعد رکھی گئی تھی۔ حمزہ کو شام گئے شارجہ سے لوٹنا تھا اور ایسے میں ملازمہ نے آ کر کسی عورت کے آنے کی اطلاع دی۔ ریشم اور صوبیہ بیگم ڈرائنگ روم میں گئے تو ریشم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں تو خانم اس کی ماں حمزہ کو دیکھ کر ثاقب کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ کیا ہوا ریشم؟ حمزہ بار بار ڈری سہمی روتی بلکتی ہوئی ریشم سے پوچھ رہا تھا۔ حمزہ کو دیکھ کر ریشم تڑپ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے حمزہ کی کمر کو مضبوطی کے ساتھ بھینچ رکھا تھا۔ آج وہ پہلی بار حمزہ کے اتنے قریب ہوئی تھی، جس پر حمزہ خود بھی بہت حیران تھا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ حمزہ نے ثاقب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ثاقب ماموں یہ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ ثاقب جیسے شاطر شخص نے مکاری دکھاتے ہوئے فوراً بات بنائی، میں بھی اس کی چیخو پکار پر ادھر آیا تو معلوم ہوا کہ یہ بیچاری ایک معمولی سی چپکلی سے ڈر گئی ہے۔ میں نے ہی تو آ کر اس چپکلی کو ریشم کے دوپٹے سے ہٹایا ہے۔ حمزہ نے سہمی ہوئی ریشم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ارے ریشم تم بھی حد کرتی ہو، میں تو بہت ڈر گیا تھا تمہیں اس طرح روتا دیکھ کر۔ تم اتنی بہادر ہو کر ایک معمولی چپکلی سے ڈر گئی۔ ریشم اب بھی حمزہ کی باہوں میں اپنا منہ چھپائے اسے لپٹی کھڑی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے حمزہ کی شرٹ تر ہو گئی تھی۔ ریشم کو حمزہ کے اتنے قریب دیکھ کر ثاقب کی کلیجے پر جیسے چھریاں سی چل رہی تھی۔ اس نے ریشم کو حمزہ کے سینے سے الگ کرتے ہوئے کہا، ریشم یہ شریفوں کا گھر ہے اور تم حد ہے ویسے، ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا حمزہ سے، اور اگر آپا نے تمہیں اس طرح حمزہ کی باہوں میں جھولتا ہوا دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گی تمہارے بارے میں؟ چلو جاؤ، شاباش، اب تم اپنے کمرے میں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لگی سہاگ کی مہندی کو بہت حیرت سے تک رہی تھی۔ مہندی کا اتنا گاڑھا رنگ پہلے تو کبھی اس کی ہتھیلیوں پر نہیں چڑھا تھا جتنا کہ آج اس کے گورے ہاتھ لال سرخ ہو رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر مہندی سے لکھا ہوا حمزہ احمد کا نام اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ اپنے ہم سفر کا نام ہتھیلیوں پر لکھا بار بار دیکھتی اور شرما کر رہ جاتی۔ ارے واہ ریشم، تمہارے ہاتھ تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ کتنا تیز رنگ آیا ہے مہندی کا۔ صوبیہ بیگم کی آواز پر وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ریشم تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں آنٹی، میں نہیں جانتی کیا مطلب ہے اس کا۔ صوبیہ بیگم اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، میری گڑیا اس کا مطلب ہے حمزہ تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حیا سے سمٹ گئی اور اپنا سر جھکا لیا۔ اس میں کچھ شک بھی نہیں تھا کہ حمزہ ریشم کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ ریشم حمزہ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ ایک عجیب سی تڑپ تھی اس کے دل میں آج حمزہ کو دیکھنے کی، اس سے بات کرنے کی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اتنے خاص دن وہ اس کے قریب ہوتا، اس کے پاس ہوتا۔ یہ محبت بھی کتنی ظالم چیز ہے۔ دراصل حمزہ ایک ضروری بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شارجہ گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی کل تھی اور کل ہی عشاء کے بعد نکاح۔ ریشم کو سوچوں میں گم سم دیکھ کر صوبیہ بیگم اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں آنٹی، حمزہ کی یاد آ رہی ہے نا تمہیں؟ نہیں تو آنٹی، مجھے معلوم ہے ریشم تم حمزہ کو بہت یاد کر رہی ہو۔ آ جائے گا وہ کل تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے۔ اچھا یہ دیکھو تمہارا نکاح کا جوڑا۔ تمہیں معلوم ہے ریشم یہ جوڑا خاص حمزہ کی پسند کا ہے۔ شارجہ جانے سے پہلے وہ اس جوڑے کا آرڈر دے کر گیا تھا۔ کھول کر دیکھو ابھی تیار ہو کر آیا ہے۔ ریشم اپنے نکاح کا جوڑا دیکھ کر دنگ سی رہ گئی۔ اتنا خوبصورت اور اتنا بھاری جوڑا مجھ سے تو چلا بھی نہیں جائے گا، میں تو گر ہی جاؤں گی۔ وہ حیرت اور خوشی سے حمزہ کی پسند کو دیکھ رہی تھی۔ بہت کمال کی پسند ہے حمزہ جی کی، اس نے دل ہی دل میں داد دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی پری کا جوڑا پرستان سے آیا ہو۔ آج وہ اپنی نصیب پر رشک کر رہی تھی۔ ثاقب آج بھی اپنی چھیڑ چھاڑ سے بالکل باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ ریشم پر لائن مارنے کی ایک اور ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر گہری سانسیں بھرنے لگا۔ ریشم اس ترسے ہوئے کمینے کا چھچورا پن دیکھ کر ذرا دور کھسکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سب سمجھ رہا ہوں میں،
तुम ये मत भूलो कि तुम्हें खानम के कोठे से रिहाई मेरी वजह से मिली है। मैंने तुम्हें फर्श से उठाकर आर्श पर बिठा दिया है। औकात ही क्या थी तुम्हारी। साकिब, मैं आज तुमसे इस मौजू पर बिल्कुल भी बहस करना नहीं चाहती। मत लगाओ मेरी खुशियों में आग, प्लीज जीने दो मुझे हमजा के साथ ये खुशियों भरी जिंदगी। मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। अब वो बेबसी के आलम में अपने हाथ उस बेहिस के सामने जोड़े बैठी थी। रेशम को अपने सामने इस कदर यूं गिड़गिड़ाता देखकर उसे आज बहुत दायमी तस्कीन महसूस हो रही थी। वो उसके हाथ थामकर कहने लगा, मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथों में, लेकिन ये क्या तुम्हारे हाथों पर हमजा का नाम कर दी ना तूने मुझसे बेवफाई। वो चिल्ला उठा, तू नहीं बचेगी किसी सूरत, मेरा नाम नहीं लिखवा सकती थी। हमजा से तो अच्छा है मेरा नाम। साकिब पर पागलपन की कैफियत तारी थी। वो रेशम के बाल अपनी मुट्ठी में दबोच कर कहने लगा, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। ये कहते हुए वो वहाँ से उठ गया। रेशम अपनी नई जिंदगी का आगाज सच्चाई की बुनियाद पर करना चाहती थी। वो तो बहुत पहले ही हमजा को एक एक बात बता देना चाहती थी जिसे हमजा अब तक अनजान था, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसे बताने से हमेशा कासी रही, जिसकी वजह सिर्फ डर था, हमजा को खो देने का डर। लेकिन आज वो बहुत हिम्मत करके निकाह से कुछ घंटों पहले हमजा अहमद के नाम एक खत लिखने लगी। रेशम इस खत में खानम के कोठे में गुजरी 15 रातों से लेकर सोबिया बेगम की गाड़ी से टकरा जाने तक का तमाम माजरा बयान करने लगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो साकिब जैसे आयाश और मक्कार शख्स की दी जाने वाली इन तमाम जहनी और जिस्मानी ज्यादतियों का भी जिक्र बहुत तफसील से करने लगी, जो वो इस बेकसूर और पाक दामन लड़की पर अब तक करता चला आया था। खत लिखने के बाद उसने अपने तमाम मामलात अपने रब के सुपर्द करके खत निहायत एहतियात के साथ अपने तकिए के नीचे रख दिया। बीबी साहिबा, कोई खानम नामी खातून आई हैं। घरेलू मुलाजमा साबरा सोबिया बेगम को मुखातिब करते हुए कहने लगी, और वो रेशम बीबी से मिलना चाहती हैं। खानम का नाम सुनते ही सोबिया बेगम के करीब बैठी हुई रेशम बुरी तरह से उछल पड़ी। ये खानम कौन है? मालूम नहीं बीबी साहिबा। अच्छा खैर साबरा, तुम इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आते हैं। रेशम, ये खानम कौन है? क्या तुम जानती हो उन्हें? नहीं तो आंटी। रेशम की जुबान घबराहट में बोलते बोलते लड़खड़ा सी गई। उसका वजूद मारे खौफ के ठंडा और रंग एकदम से पीला पड़ने लगा था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि खानम इस तरह आ धमकेगी। इसी दौरान कमरे में साकिब दाखिल हुआ। वो सोबिया बेगम से मुखातिब होते हुए पूछने लगा, आपा, ये ड्राइंग रूम में कौन खातून बैठी हैं? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ साकिब, ये खातून रेशम से मिलना चाहती हैं। साकिब रेशम की ढीली पीली हालत को देखकर मजे लेते हुए कहने लगा, लेकिन आपा, रेशम गुड़िया तो इस टाइम ब्यूटी पार्लर जा रही है। वैसे ही इतनी देर हो गई है और कुछ देर बाद निकाह भी है, बाद में मिलेगी रेशम इस खातून से। अरे साकिब, मिल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पता नहीं कौन औरत है बेचारी। ठीक है आपा, जैसे आपकी मर्जी। साकिब तंजिया मुस्कुराते हुए एक नजर डरी सहमी रेशम पर डालने लगा, जो निकाह का सुर्ख जोड़ा पहने ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तैयार बैठी थी। साकिब दिल ही दिल में सोचने लगा, हाय बेचारी मनहूस मारी रेशम अब तो नहीं बचने वाली खानम के चुंगल से किसी भी सूरत। उसकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के दरमियान थी। ये मोटी भद्दी काली सी औरत इंतहाई फिटिंग की कमीज शलवार पहने अपनी छोटी छोटी आंखों में गहरा काजल भरे, चोंच सुर्खी से रंगे, हाथों में भरी भरी चूड़ियां खनखनाती ये खौफनाक से खुदुखाल वाली लालची औरत, जो निहायत ही ललचाई हुई नजरों से ड्राइंग रूम में सजे कीमती सामान को टिकटिकी बांधे तक रही थी। रेशम को कमरे में आता देखकर खानम ने झूठ मूठ का ड्रामा करना शुरू कर दिया। अरे रेशम, मेरी बच्ची किधर गुम हो गई थी तू? कहाँ कहाँ तुझे नहीं ढूंढा मैंने। अब अपनी माँ से ऐसी भी क्या नाराजगी कि तू महीनों के लिए घर छोड़कर भाग गई। तूने बूढ़ी माँ का जरा सा भी एहसास नहीं किया कि अब तेरी माँ किधर से खाए पिएगी। बेटी, हमारा कोठा तो तेरे दम से ही चल रहा था ना, अब तो कोई आता जाता ही नहीं है। सूना कर गई है तो मेरा आंगन। खानम ने आगे बढ़कर खौफजदा सी रेशम को अपने सीने से लगा लिया। और ये क्या, तो दुल्हन के जोड़े में ये सब क्या माजरा है बहन? खानम ने सोबिया बेगम की तरफ देखकर दरियाफ्त किया। सोबिया बेगम, जो इतनी देर से मारे हैरत के ये सब देख रही थी, बोल उठी, क्या ये आपकी बेटी है? हाय अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रखे बेगम साहिबा, ये मेरी बेटी है। कोई शक है?
लेकिन रेशम ने तो हमें ये बताया था कि ये यतीम है, बेसहारा है, कोई नहीं है इसका। क्यों रेशम, तुमने यही सब कहा था ना हमसे? आप कैसे कह सकती हैं कि आप वाकई रेशम की वालदा हैं? सोबिया बेगम ने खानम की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। बोली, कोई सबूत है आपके पास? हाय हाय बेगम साहिबा, हटो आप इधर से। खानम ने सोबिया बेगम को परे करते हुए कहा, अपने खून के लिए अब मुझे एक गैर औरत के सामने सबूत भी पेश करना पड़ेगा। वाह बेवाह, कैसा जमाना आ गया है आजकल। तोबा तोबा, बंदा अपनी चीज को हक से अपना भी नहीं कह सकता। खैर, सबूत चाहिए ना आपको बेगम साहिबा? तो ये देखो। खानम ने अपना गुलाबी रंग का बटवा खोला और बड़ी फुर्ती से मोबाइल फोन निकालकर सोबिया बेगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गौर से देख लो इस वीडियो को। क्या अब भी किसी सबूत की जरूरत बाकी है? वीडियो देखकर सोबिया बेगम को अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। वो बड़ी मुश्किल से सोफे का सहारा लेकर खुद को संभालने लगी। भड़कीले लिबास में मलबूस, कानों में बाली, होंठों पे लाली, पैरों में छन छन करते घुंघरू बांधे ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रेशम ही थी, जो रक्स और सरूर की महफिल सजाए बैठी थी। सोबिया बेगम को यूं हक्का बक्का देखकर ये घटिया औरत जानदार कहका बुलंद करते हुए बोली, बेगम साहिबा, ये आपके दीदे क्यों फटे के फटे रह गए? अब आया मेरी बात पर यकीन, या कुछ और भी सबूत पेश करूं आपकी खिदमत में? खानम की इस भट्टी डिटाई को देखकर सोबिया बेगम गर्ज उठी। ये सब क्या है रेशम? इस वीडियो में ये तुम हो? बताओ मुझे सब सच सच। देखो, झूठ का सहारा मत लेना। बोलो, तुम चुप क्यों हो? लेकिन रेशम तो मुस्तकिल सख्ते की कैफियत से दो चार थी। रेशम, जवाब दो। देखो, तुम्हारी खामोशी मुझे वो सब सोचने पर मजबूर कर रही है जो मैं सोचना नहीं चाहती। अब वो बेजान सी खड़ी रेशम को बुरी तरह से झंझोड़ रही थी। कुछ बोलो, खामोश क्यों हो तुम? इतना बड़ा फरेब, क्या मतलब समझूं मैं तुम्हारी इस खामोशी का? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये भोली भाली सी लड़की। कह दो रेशम कि ये सब झूठ है। सोबिया बेगम परेशानी और बौखलाहट के आलम में कभी खानम को देखती तो कभी बुत बनी खड़ी रेशम को। ये क्या बोलेगी बेगम साहिबा? क्या कोई सगी बेटी अपनी माँ को झूठा बोल सकती है? आप भी ना बेगम साहिबा, ये हमारा आपस का मामला है, लिहाजा कोई भी दखल अंदाजी ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। अब खानम ने गुस्से में आकर रेशम को बालों से घसीटते हुए कहा, चल भाई रेशम, बहुत हो गई तेरी ये ड्रामेबाजी। रुपए पैसे की चमक दमक ने तुझे इतना अंधा कर दिया कि तुझे अपनी बूढ़ी और कमजोर माँ दिखाई नहीं देती। कितनी खुद गर्ज औलाद है तू। चल अब छोड़ो मेरे बाल। वो तकलीफ से चिल्ला रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लेकर नहीं जाओ, आज मेरा निकाह है। हमजा बस आने ही वाले हैं। छोड़ो मुझे, अल्लाह के कहर से डरो तुम लोग। आंटी, बचा ले मुझे आप प्लीज। हाँ हाँ, ये वीडियो मेरी ही है, लेकिन ये औरत मेरी माँ हरगिज नहीं है। इसने मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाया था। ये बहुत जालिम और बेईमान औरत है। रेशम से ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था। उसकी आवाज हलक में अटक रही थी। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। वो अपने हाथ जोड़े सोबिया बेगम के कदमों में पड़ी जारों की तार रो रही थी। साकिब, तू कामयाब हो गया अपनी इस घिनौनी चाल में। खानम को मेरी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद करवाने के लिए ले आया। क्या मिला तुझे ये सब करके? रेशम साकिब का गिरीबान पकड़े उसे ललकार रही थी। वो रो रही थी। उसकी चीखों पुकार सुनकर घर में मौजूद मेहमान और मुलाजिम घबराकर ड्राइंग रूम में आ पहुंचे। किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रेशम, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो साकिब का गिरीबान। सोबिया बेगम तैश में आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर साकिब को रेशम की गिरफ्त से आजाद करवाया। ये क्या हरकत है? तुम अपने होशो हवास में तो हो? तुम इतनी बदतमीज लड़की हो सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम इस हद तक गिर सकती हो कि मेरे तहज्जुद गुजार भाई को उस तवाइफ से मिला रही हो। निकल जाओ मेरे घर से। आंटी, मेरी बात सुने, यूं ना धुतकारे मुझे। ये खानम मेरी माँ नहीं है। इस औरत ने मुझे चकवाल से अगवा करवाया था और आपका भाई इस औरत के साथ मिला हुआ है। मेरी बात पर यकीन करें प्लीज। मैं एक शरीफ और घरेलू लड़की हूँ। कोठे पर मेरी मुलाकात साकिब से हुई थी। आंटी, ये साकिब अच्छा आदमी नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं सब कुछ कि आपका भाई सानी है? आप समझ रही हैं ना मेरी बात? उस रात खानम के कोठे पर ये मेरा पहला खरीदार बनकर आया था, लेकिन जब मैंने इस हैवान की बात नहीं मानी तो ये बस रेशम, बस। अब एक और लफ्ज भी नहीं, बहुत हो गया।
तुम ये शान शौकत, माल और दौलत और ऐशो आराम पाने के लिए इस हद तक गिर सकती हो? मेरे इबादत गुजार भाई पर इतनी बड़ी तोहमत लगा सकती हो? साकिब ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा और आज तुम इन पाकीज़ा रिश्तों की धज्जियां उड़ा रही हो। निकल जाओ मेरे घर से। तुम लोग, तुम जैसी झूठी मकार लड़की के लिए मेरे इस घर में अब कोई जगह नहीं है। आंटी बहुत गलत सोच रही हैं। आप ऐसा मत करें, मेरे साथ नहीं निकालें मुझे अपने घर से। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, बस हमजा को आने दें। ये साकिब की चाल है, प्लीज मेरी बात तो सुने। मैंने तो सिर्फ हमजा से बेलौस मोहब्बत की है। सोबिया बेगम पर उस बेकसूर लड़की की आहो फरियाद बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। साकिब जैसा शातिर खिलाड़ी अपनी स्कीम में भरपूर तरीके से कामयाब हो चुका था। उसके बिछाए हुए जाल में रेशम पूरी तरह से फंस चुकी थी। सर झुकाए, हाथ जोड़े खड़ी ये प्यारी सी लड़की इल्तिजा भरी नजरों से सोबिया बेगम को देखकर सोच रही थी, काश वो उसे इन दरिंदों से बचा ले। उसने एक कोशिश फिर की, आंटी मुझे रोक ले, वरना ये लोग मुझे गलाजत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देंगे। बस रेशम, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। मैं तुमसे बार बार पूछती रही तुम्हारी असलियत, लेकिन तुम हर बार झूठ बोलकर मेरे और हमजा के जज्बात से खेलती रही। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि मैं एक तवाइफ को इस घर की बहू बना लूं। और तुम किसी गलत फहमी में नहीं रहना कि हमजा ये सब जानकर तुम्हें अपना लेगा। रेशम, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हमजा मेरा बेटा है और मैं उसको तुमसे ज्यादा जानती हूँ। वो तुम्हारी हकीकत जानने के बाद तुमसे नफरत करेगा, धुतकार देगा तुम्हें, समझी तुम? साकिब, बाहर निकाल दो इस झूठी लड़की को और उसकी माँ को। साकिब रेशम को बेदर्दी से घसीटते हुए बाहर ले आया। इस दौरान खानम साकिब से मुखातिब होते हुए कहने लगी, साकिब, अब क्या करना है इस छमिया का? अब मेरी हिम्मत तो नहीं इस जख्मी शेरनी को काबू में करना। तुम क्यों इतना डर रही हो? इसके हाथ पैर बांधकर एक तरफ डाल देना और अगर ज्यादा फड़फड़ाए तो ये इंजेक्शन ठोक देना कुछ घंटों के लिए। लेकिन खानम, तुम मेरी एक बात याद रखना, इसके बेदाग चेहरे पर जरा भी खराश न आने पाए, क्योंकि मुझे उसके दूधिया मुखड़े से बड़ा प्यार है। रेशम, साकिब ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, घबराना नहीं तुम, मैं रात तक आऊंगा तुम्हारे पास और हम फिर दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।